Students, now we are trying to go for motion of a body under the influence of gravitational force of the earth. And students, abhi jo hum problems karne wale wo kaun se honge malum hai? Students, listen carefully. Suppose if I have an object and if I make an object which is made to drop vertically downward, students. Okay. So now if I say an object dropped vertically downwards. That means what kind of a fall the body is going to have? It will be a free fall, students. It's a free fall. So agar ye object freely falling hai, then in that case, what exactly its initial velocity will be? 0. When it strikes the ground, students, when it strikes the ground, it's going to strike with maximum velocity. Agreed? What is the acceleration? I'll take it as equal to acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity down we consider is with a vector. Students, its negative sign shows that it's directed vertically downwards. लेकिन जब भी तुम problem solve करते हो ना students, can anybody tell me acceleration to gravity तुम कैसे करोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो acceleration to gravity को क्या लोगे, और ऊपर की तरफ जाएगा तो acceleration to gravity को क्या लोगे? Anyone? Students, the sign conventions I'm speaking about. Because whenever you speak about sign conventions, we say that a body which is said to move along positive x-axis, negative x-axis, positive y and negative y. ये तुम्हारा sign convention है, students. तो अगर मैंने बोला कि object is made to drop vertically downwards, or if an object is thrown vertically upwards, तो मुझे बताओ students, acceleration due to gravity तुम क्या लोगे? What is the sign conventions you'll be taking it for acceleration due to gravity? Anyone? So like downwards is positive and upwards is negative. Downwards is positive and upward is negative. Why downward is positive? Al-Abdi, why not upward is negative? Because speed is increasing downwards, and अगर ऊपर कोई ball फेंकेंगे then speed is decreasing. So Retardation and acceleration. okay, students, she means to say that whenever you are trying to, students, ये logic तुम लोगों ने 10th में पढ़ा और 9th में पढ़ा हुआ है, students. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है ना, पुल ऑफ द अर्थ. और जब भी बॉडी नीचे की तरफ जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, लेकिन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का डायरेक्शन स्टूडेंट्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. जब भी बॉडी ड्रॉप होता है तो in that case acceleration possessed by the body is in the direction of acceleration, the acceleration of gravity is in the direction of the gravitational force. यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो स्टूडेंट्स, जब ये दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होते हैं तो वी कैन neglect the arrow over the heads. That means we can neglect the directions. That is why students, तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में बताया गया था कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ. But you are trying to make the body to move with an acceleration in the upward direction, which is going to go on decreasing. तो यहाँ पे तुम्हारा जो acceleration becomes acceleration to gravity will be in the direction opposite we consider. That means what exactly I'll take it as negative. Since the motion is upwards, the gravitational acceleration is downwards we consider. Therefore, we take gravitational acceleration to be negative. क्या ये clear हुआ students? Is this clear to all of you all? Yes. यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, अभी देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे अगर तुम दोनों के लिए भी नेगेटिव लोगे ना तो भी तुम्हें आंसर सही मिलेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. स्टूडेंट्स, एज पर द रूल सेज, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, व्हाट एक्जैक्टली द रूल ऑफ वेक्टर सेज. वेक्टर्स का रूल क्या है? अ वेक्टर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, स्टूडेंट्स, अ वेक्टर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑलवेज लिखेड टू बी नेगेटिव. अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूं नीचे की तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होना चाहिए, वेलोसिटी नेगेटिव में होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में होगा, फोर्स भी नेगेटिव में होगा, क्योंकि वो वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है. अगर मैंने कोई बॉडी ऊपर की तरफ लूंगा तो व्हाट एक्जैक्टली आई विल कंसीडर? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव,
लेकिन acceleration to gravity is directed vertical onwards, I can take it as negative. स्टूडेंट्स दोनों केस के लिए तुम नेगेटिव ले सकते हो, तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सही जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन स्कूल सेक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी ड्रॉप होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वही अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ओके, एन ऑब्जेक्ट vertically upwards, then the body will have some initial velocity. Of course, the initial velocity will be positive. Final velocity at the maximum height will be 0. Acceleration will be acceleration due to gravity we consider, and that I can take it in terms of negatively take it. Displacement क्या होगा तुम्हारा? Positive हो जाएगा. So these are the sign conventions which you have to consider. क्या ये part clear हुआ सबको? My students, is this clear? A body when dropped from a certain height, or body when thrown vertically upwards. Is this part clear? Yash, Vishal, Yes, sir. Sham. Sham, is it clear? Yes, sir. Clear. Labdi, what about you? Rakshanda, Prachi? Okay. Bhairavi? Now please pay attention. Now when you try to go for it, students, okay, suppose if I happen to consider, okay, if in case if I happen to consider, students, listen carefully now. Now suppose if I want to write in the equations, then what exactly equations will be? So the equations will be V is equal to U plus acceleration को I can put it as GT. Displacement को मैं H भी लिख सकता हूँ, students. So H is equal to UT plus half GT square I can consider, है ना? V square is equal to U square plus 2GH. अभी तुम्हें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेना है वो तुम्हारे पे डिपेंड है। अगर तुम नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हो, ऊपर की तरफ नेगेटिव लेते हो, इट्स फाइन इनफ। लेकिन अगर तुम दोनों के लिए भी नेगेटिव लोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, यू विल गेट योर आंसर करेक्ट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाता क्या है, बॉडी किस तरफ जा रहा है, दैट इज द ओनली अप्रोच स्टूडेंट्स। हम ऐसे हम क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन ऐसा लूंगा जहां पे लब्धि, व्हाट डिड यू टेल मी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ तुमने क्या लिया था लब्धि? पॉजिटिव। क्या लिया था तुमने? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ऊपर की तरफ तुमने क्या लिया था? नेगेटिव। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लब्धि की तरह से, और वो तुमने स्कूल सेक्शन में पढ़ा लब्धि वैसे ही, हाँ या ना? हाँ। ओके। और हम दूसरी तरीके से भी लेंगे, मैं दोनों को नेगेटिव लेके वही प्रॉब्लम दोनों को नेगेटिव लेके भी हम कर सकते हैं। There won't be any change into it. Students, सिर्फ तुम्हें आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलेगा, वो क्या बताता है कि बॉडी किस तरफ जा रहा है, दैट इज ऑल। एंड स्टूडेंट्स, करेक्ट अप्रोच कौन सा मालूम है? दोनों को नेगेटिव, दैट इज स्टिल द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ अप्रोच स्टूडेंट्स। उसमें तुम्हें आंसर बहुत करेक्टली और कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी मिल सकता है। तो दीज आर द इक्वेशन स्टूडेंट्स फॉर द बॉडी व्हिच इज हैविंग अ फ्री फॉल। एक ध्यान में रखना कि जब भी बॉडी को तुम ड्रॉप करते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। बॉडी को जब भी तुम ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी होगा लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Whenever you throw a body, listen carefully, whenever you throw a body vertically upwards, जो वेलोसिटी से तुमने बॉडी को ऊपर फेंका है students, and when the body comes back, okay, the velocity with which it comes back is exactly equal to the velocity with which the body has been launched. यानी अगर कोई बॉडी को तुमने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है तो वो ही ऑब्जेक्ट वापस 20 मीटर पर सेकंड पे ग्राउंड को स्ट्राइक होगा। या अगर तुमने ऊपर की तरफ फेंका है तो तुम्हारे हाथों में जब भी वापस आएगा इट विल कम बैक विद सेम वेलोसिटी। ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखना प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे। These are important note to be taken care of. Are you getting it? A body thrown with a velocity of 20 meters per second can come down
at same speed. The next point to be noted. If I throw a body vertically upwards, and suppose if I say the time taken for it to reach the maximum height is t seconds, then what is the time taken for it to come down at the same position we consider? T seconds only, students. Yani time of ascent is exactly equal to time of descent. ये ध्यान में रखना. Time of ascent is always equal to time of descent. क्या ये दोनों clear हुआ, students? हाँ, students? Yes, sir. अभी सपोज अगर किसी से पूछा सर मुझे प्रूफ करके बताओ ना. स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल, अगर सपोज तुमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ फेंका, तो कहने से बॉडी विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट को उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम ऑफ असेंट. चलो इसको सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स जब भी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो v 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनना, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो लब्धि ने क्या बोला था, सर जी को नेगेटिव लो. मैंने भी बोला जी को हमेशा नेगेटिव लेके भी तुम आंसर डाल सकते हो, तो ले लो ना नेगेटिव, टेंशन क्यों ले रहे हो. तो स्टूडेंट्स क्या आंसर मुझे टाइम ऑफ असेंट का मुझे क्या आंसर मिला, u by g. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम? इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ सपोज अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी हो भैया, सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. Will it strike the ground with maximum velocity? Yes, same velocity. जो velocity से ऊपर क्या वो velocity से नीचे आएगा. तो final velocity is v only. Acceleration क्या होगा? Acceleration to gravity. Can I use the same formula? Yes, v agreed is equal to u is 0. अभी आंसर देखना, a को g लूंगा मैं and time of descent. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, लब्धि के हिसाब से g लब्धि ने क्या बोला था लेने के लिए? नीचे की तरफ स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ जी लेने के लिए क्या बोला था उसने? पॉजिटिव बोला था ना. लब्धि डिड यू से पॉजिटिव फॉर कमिंग डाउन? Positive. Yes. तो देखो उसका आंसर क्या आ रहा है, अगर मैं टाइम ऑफ डिसेंट निकालूंगा तो देखो टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट आ रहा है v by g, बस वो बट was v equal to u. yes, v was equal to u. तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, है ना? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. क्या ये क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है तुम्हें? टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट मैंने क्लियर किया. प्लीज आई एम नॉट टीचिंग ओनली लब्धिया, प्लीज. ये लब्धि के साथ में सेपरेट ट्यूशंस नहीं चल रहा है, वो तो बहुत स्मार्ट है. प्राची, are you getting it, Prachi? Bhairavi, I don't know about you. You're not responding at all. Dhruv, Dirsha, Chanvi, Kashish, Khan Mohammed, Krish, Rakshanda, Sania, Shyam, Tejas, Paneri, Prachi, Dishant. It seems Dishant is not there, so I'm going to remove him. Yes, sir. Understood. Okay, fine. Yes, sir. Okay, fine. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ असेंट अभी ध्यान से सुनना, लेकिन हम लब्धि के हिसाब से पहले सॉल्व किया ना. अभी ध्यान से सुनना, अभी मैं मेरे हिसाब से सॉल्व करता हूँ. मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब भी तुम बॉडी को ऊपर भेजते हो या बॉडी को नीचे गिराते हो, दोनों केस में जी को नेगेटिव ले सकते हो बिंदास. अगर बाई चांस स्टूडेंट्स तुमने नीचे की तरफ भी जी को नेगेटिव लिया, तो अभी तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताओ? व्हाट इज द आंसर? v is equal to what? minus g into td, है ना? टाइम ऑफ डिसेंट. मुझे ये बताओ ये नेगेटिव साइन दिखाता क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, Direction. डायरेक्शन. इज वेलोसिटी a scalar or vector? Is velocity a scalar or vector? It's a vector. What is the magnitude? Gravitational acceleration into time of descent. But where exactly the vector is directed?
डाउनवर्ड्स नेगेटिव साइन शोज कर रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स तुम नेगेटिव में लोगे तो भी चलेगा। अभी तुरंत तुरंत लब्धि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी जो पूछ नहीं रही है, तुरंत वो पूछेगी सर चलो आपने नेगेटिव लिया लेकिन अभी टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला तो क्या आंसर आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करो। टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, v अपॉन माइनस जी, है ना, इसके हिसाब से तो ये फॉर्मूला आ रहा है। तो लब्धि बोलेगी सर ये तो आपका गलत आ गया, मैं सही थी, मेरा आंसर तो सही आ रहा है, देखो आपने बोला था टाइम ऑफ असलेशन टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सही आ रहा है क्योंकि v इक्वल टू u है। अगर मैंने 20 मीटर्स के ऊपर से फेंका तो 20 मीटर्स पे नीचे भी आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी सही है, ये क्या है, टाइम, टाइम कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लिया है, नेगेटिव, डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड्स। स्टूडेंट्स वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या ये जो हम लोग को इक्वेशन लिया है किसके लिए लिया है, टाइम ऑफ असेंट के लिए या टाइम ऑफ डिसेंट के लिए है, तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए। तो नीचे की तरफ आ रहा ना तो इसको भी तो नेगेटिव साइन दिखाना जरूरी है, तभी ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी v by g एंड दैट विल बी अ स्केलर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ Students, again I'm telling you all, I'm not only teaching Labdhi. तो सर Clear हुआ students? सो अकॉर्डिंग टू यू हमें दोनों नेगेटिव ही लेना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव लोगे ना तो लब्धि तुम्हें आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके फिर सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्योंकि अगर सपोज बॉडी नीचे की तरफ आएगा ना लब्धि, हाँ बॉडी नीचे की तरफ आएगा और अगर तुमने जी को पॉजिटिव लेना तो तुम्हें एस आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मुझे एस नेगेटिव में मिलेगा। तो वो नेगेटिव क्या दिखाता है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन तुम्हें वो वहां पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तुम्हें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड के लिए तुमने नेगेटिव साइन वहां पे आया नहीं। लेकिन वो ध्यान में रखना, भले तुम जी को पॉजिटिव लो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, नो नथिंग टू वरी अबाउट इट, तुम ले सकते हो जी को पॉजिटिव, लेकिन फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ध्यान देना कि बॉडी तुम्हारा नीचे की तरफ ही जा रहा था। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ये भूलना नहीं, प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से रीड करना। सो ये तुम्हारे फॉर्मूलास थे, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, ऊपर के लिए फेंकना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए। यहाँ पे जब ये सॉरी नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो एनर्जी नहीं चाहिए, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो एनर्जी चाहिए। तो जब भी कोई चीज ऊपर से अगर तुम्हें ड्रॉप करना तो क्या, सपोज अगर अगर तुम क्रिकेट खेलने जाते हो और ऑल ऑफ अ सडन तुम बॉल भूल गए हो घर पे, तो तुमने मम्मा को कॉल करके बोला कि मम्मा जरा बालकनी में आ जाना, और फिर तुम मम्मा को बोलते मम्मा थ्रो द बॉल, डू यू यूज द लैंग्वेज थ्रो द बॉल और मम्मा ड्रॉप द बॉल? हाँ, विल यू से थ्रो द बॉल और ड्रॉप द बॉल? ड्रॉप बोलोगे ना, मॉम को एनर्जी तो देनी नहीं पड़ेगी, मॉम तो ऐसा पकड़ के सीधा छोड़ देगी तो नीचे आएगा बॉल। तो जब नीचे तुम करोगे तो एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पे इनिशियल क्या होगा, जीरो, फाइनल मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन को तुम प्लस जी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि मोशन नीचे की तरफ है। बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी नेगेटिव ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हाइट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाते हो तो प्लस एच, नीचे की तरफ आते हो तो माइनस एच, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। दूसरी बात नोट के लिए, जो वेलोसिटी से तुमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वही वेलोसिटी से तुम्हारे हाथ में भी आएगा। टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट फॉर कंप्लीट जर्नी। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. हाँ नाउ सपोज वन मोर थिंग, सपोज अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया गया, वहां पे तुम्हें बोला गया है कि तुम एक पैराशूट में हो स्टूडेंट्स, बलून पैराशूट, ओके, और वो पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है, पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। सपोज अगर तुमने तुमने उस टाइम पे पैराशूट यहाँ पे, ये तुम पैराशूट में, ये बलून वाला पैराशूट है, तुम यहाँ पे हो अंदर, और उसी टाइम पे तुमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, और ये पैराशूट का स्पीड है v मीट यू मीट सॉरी इसका पैराशूट का स्पीड है स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड।
तो मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट तुमने ड्रॉप किया ना, ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हो, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? यू आर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, वो वाला कंडीशन आता है। तो हाँ। क्या तुम यहाँ पे 0 लोगे? आई होना चाहिए। नो, इट विल बी 5। हाँ 5। एग्रीड? यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, अगर पैराशूट का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, उसी टाइम पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ? यस। दूसरा, अगर तुम्हारा पैराशूट है, ध्यान से सुनना, ये पैराशूट स्टेशनरी है, गेटिंग इट, फ्लोटिंग, पैराशूट इज व्हाट? फ्लोटिंग इन एयर। और फिर तुमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका with a velocity of 10 meter per second at point A, at point A, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद में वापस यहीं पे आएगा, एग्जैक्टली सेम लाइन, और फिर वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक होगा। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब भी तुमने ऑब्जेक्ट को फेंका एट पॉइंट ए, उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जब भी वो बी पे आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा? 10। 10 मीटर 10 पर ही। सेकंड। ये ध्यान में रहे, यानी ये क्या बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब भी वो स्ट्राइक करेगा तो विल इट स्ट्राइक विद मैक्सिमम वेलोसिटी? यस, ये तुम्हारा इनिशियल होगा, ये तुम्हारा इनिशियल है यहाँ पे बी के। जब भी वो ऊपर जाता है, मतलब कहने से ये हो जाएगा टाइम ऑफ असेंट, विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है ना? टोटल टाइम फॉर द बॉडी टू कम बैक टू द ग्राउंड क्या होगा? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ फ्री फॉल। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ फ्री फॉल, दैट इज द टोटल टाइम। क्या ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए स्टूडेंट्स? यस। Yes, Okay. sir. Fine. Now I want you to solve certain questions, students. Okay. Let us go for certain questions, students. Okay. That is given on page number 62, students. Okay. I wanted to solve 13th, 14th, and 15th on page number 62 in chapter exercise right now. Can I erase this? पहले मैं इसको erase कर दूं, students? हाँ। मिनट। Hey, 1 minute. तो रोती क्यों है लवदी? Why do you cry? Lवदी? I'm not crying. Okay, fine. And you didn't attend the lectures last sessions? Huh? I attended. No, your friend was missing you. Who was she? I forgot. Oh, I attended all lectures. No, my dear. There was one lecture was there, and Kashish was missing you. वो नीट वाला था। अरे मुझे नहीं पता था करके, लेकिन वो बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। No, sir, that lecture was only for फिर NEET students. उस टाइम पे उसके आंसर्स भी सही नहीं आ रहे थे, तो मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहे थे, तो वो बोला लब्धि नहीं है ना मेरे साथ में, इसलिए। लब्धि क्या हो गया? कशिश तुम रहते हो साथ में तो कशिश आंसर देती है ना? हाँ सर। Okay, students, the question is, please pay attention, page number 62 of your module, unsolved problems in chapter. Students, क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? या लब्धि you are still writing it? So you can use. Okay, fine. लिखना तो लिख दो, don't take tension, बस complete कर दो. And please, those who have completed writing or whatever it is, please start solving questions. Huh? But I want to complete with this exercise and move further at 13th question.
तो लिख लिया. Yes, anybody for 13th one, students? किसी ने complete किया 13th? Sham, have you completed now? No, sir, still doing. Johnson है ना? हाँ सर वही है. Okay. क्या तू भी WWF में जाने वाला है? A body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 98 meter per second. Students calculate the maximum height. Students ये जो जितने भी पांचों questions तुम solve करोगे यानी तुम्हारे basic concepts clear हो जाते हैं students. That is why this problem is given to you. तो तुम अपने आप से करना and please try to finish it off fast and try to match up the answers. A body is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 98 meter per second. So U is 98 meter per second, students. Calculate the maximum height, please. So at maximum height, final velocity 0 हो जाएगा. Okay, what's the formula for the first one? Initial velocity कितना दिया है? 98 meter per second. है ना? At maximum height, students. At h max, what happens to its final velocities? पूछा क्या है? Maximum height. Which formula I'll use it? Students को बता सकते हैं?
Pass. H Which one? Your voice सर वो is डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है वो. distance वाला कहाँ से आएगा my dear? So V square equals to U square plus 2AS. Absolutely correct. क्योंकि acceleration है ना, तुम्हें मालूम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा v square is equal to u square plus 2as की जगह पे h ले लिया, s is equal to h. अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 98 स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे. अभी देखो ध्यान से सुनना, सारे स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना. ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लब्धि की तरफ से क्या होगा, जी नेगेटिव होता है. मैंने भी क्या बोला था, जी नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव ले रहे हैं, तो डाल दो माइनस. तो कैन आई गेट प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको यहाँ पे ले लो. तो व्हाट इज एच मैक्स, 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8. देखो कहना से एच मैक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 98 इंटू 98 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 98. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? So 2 how many था, 5 सा 8 5 सा 40, 9 5 सा 490. 49. Yes, Shyam, you want to ask something? सर हम लोग इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं ना? हाँ लेकिन टाइम नहीं दिया ना, फिर तेरे को टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई. हाँ सर मैंने वैसे ही किया है, मैंने टाइम फाइंड आउट किया है, बाद में डिस्टेंस वाला तो फॉर्मूला लगाया. फाइंड, मैं मना नहीं करता होगा, फाइंड नहीं कर सकता, कर सकता, लेकिन वो तेरा लेंथी हो जाएगा ना. तू 2 क्वेश्चन, तू 2 फॉर्मूला यूज करके कर रहा है ना. और तू अगर सपोज अगर अभी तक सेकंड क्वेश्चन में टाइम पूछा है तो तेरा टाइम आ गया, तूने टाइम फाइंड आउट कर दिया पहले किस में, है ना. देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स, टाइम ही पूछा है ना. हाँ सर, टाइम टेकन टू असेंड. हाँ तो इट्स फाइन, हमने विदाउट टाइम किया है. तो फर्स्ट आंसर इज एवरीबॉडी क्लियर विद यू, 490 मीटर. 490 मीटर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Okay, fine. Now see, there are students. Initially, there were how many students? There were 24 or 25 students. Now already 3 students are out. The parents are not bothered at all. It seems like that. Really, I feel like that I should give a call. I should tell Avinash sir to give a call right now, and Anu ma'am to give a call to your parents right now. ये नहीं होता है सर, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. Okay, second students, time taken to reach the highest point. Yes, anybody can find out time taken to reach the highest point. 10 seconds. Absolutely correct. श्याम तूने कौन सा फॉर्मूला यूज किया टाइम के लिए, बता जल्दी. V equals to U plus 80. Very good. कशिश Yes, sir. आ गई तू? हाँ sir. ओके. सर मुझे बोलने ही नहीं दिया सर. बोलने नहीं दिया ना तेरे को, है ना. हाँ सर. हाँ तो कशिश हमेशा ऐसे ही करती है ना. नहीं सर, सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं करती मैं ये सब. ऑफलाइन नहीं करते हो? अरे ऑफलाइन भी, नहीं. ऑफलाइन तो लास्ट टाइम लब्धि को मिस कर रही थी ना. हाँ सर, वो रहती है तो अच्छा रहता है ना, फ्रेंड्स रहते तो. अच्छा. Okay. Now see, it's time taken. So what exactly the formula will be, students? V is equal to U plus 80. Now the answer is students. So at maximum height यानी final velocity तो 0 हो जाएगा. Initial कितना है 98, है ना. तो 98, sorry, this is 0, 98. Motion upwards, तो acceleration will be g, जो minus 9.8 into time. So that is time of ascent. देखो कहने से 9.8 into t is equal to 98. So what exactly t will be equal to 98 into 10 upon 9.8. 98 ही cancel हो जाएगा. तो what's the time? 10 seconds. ये second answer हुआ. What about the third part of the answer? Can you tell me the third answer? 75.9 meter per second. देखा लब्धि कितनी फास्ट है वो. सर वो बोलने नहीं देती. हाँ बोले तो कहाँ थी ये कशिश, तो अभी एंट्री मारी कशिश. नहीं सर, मैं सुन रही थी आप क्या पढ़ा रहे हो. अच्छा
तो मैंने बोल रहा था कब से लवदी को मिस कर रही है, ये है वो है, तभी तो लवदी ने क्या बोला मालूम है कि मैं तो मिस नहीं करती हूँ। ओके मैंने कभी बोला? ओके, थर्ड वन, velocity at the highest, students, velocity at the height of 196 meter from the point of projection. Students, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर सपोज यही ऑब्जेक्ट को तुमने at the height of 198 meters लिया, सॉरी 196 मीटर, ओके, अगर तुमने बॉडी को 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सो वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, बताओ क्या होगा। बोलो। b square is equal to u square plus 2as. b square is equal to u square plus 2as. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, v square is equal to u square plus 2 into a will be equal to g into h। तो भाई क्या पूछा है, v पूछा है या u पूछा है? b हाँ b v V पूछा है, पूछा है। तो u कितना है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 98. 98। हाँ देखा, लगता है स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ऐसा लग रहा है कि दोनों है ना चैट्स में एक दूसरे को आंसर दे देते हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। +2 into एक्सेलरेशन नहीं सर, इज होता है ऐसा, लेकिन जब कंफ्यूजन होता है तब, जब पता है कि आंसर राइट है तो सीधा बोल देते हैं। ओके। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन को क्या लोगे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? Negative. नेगेटिव। I getting it? Into height is what? 196. Now can you solve this? So v square is equal to 98 square minus 2 into 9.8 into 196. Can you get an answer for this? Students? यस सर। And the answer you'll get is how much? 75.9 के आसपास आ रहा है तुम्हें? यस सर, Please इसको भी 75.9। तुम्हें solve करना है, ये तुम्हें solve करना है students। Everyone has to solve, इसका रूट निकालना पड़ेगा, 98 स्क्वायर निकालो, उसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, जो आंसर मिलेगा उसका रूट निकालना है। तो यू विल गेट द आंसर इज 75.9 मीटर पर सेकंड। यानी स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो तुम्हें ये सोचना है, उसका मतलब तुम्हें क्या करना, मानो ध्यान से सुनना, उसका मतलब ये है कि अगर तुमने बॉडी को इनिशियल स्पीड 98 मीटर पर सेकंड दी, एंड इफ द बॉडी इज रीचिंग टू अ हाइट ऑफ 196 मीटर, तो उसका स्पीड 98 से कहां से पहुंचा, 75.9 तक पहुंचा। यानी समझ में आ रहा है क्या हाइट तक हो जाएगा, सो दैट इट स्पीड बिकम्स 0? ऑफ कोर्स इट विल स्टिल ग्रेटर देन दैट। At what displacement the height will be 0? I getting it? तो अगर तुम देखोगे तो what height is becoming 0, देखो 490 मीटर। ये क्या आंसर मिल रहा है, 490 मीटर। यानी 196 पे उसको कुछ वेलोसिटी है, उसके बाद में अगर तुम 200 मीटर्स जाते हो, 300 मीटर्स जाते हो, 400 मीटर्स जाते हो, तब तक उसकी वेलोसिटी रहेगी, लेकिन वो कम होते जाएगी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब वो 490 मीटर्स तक पहुंच जाएगा, तभी फाइंड द वेलोसिटी 0 होगा। Are you getting the concept of theoretical understanding, students? थियरी समझ में आ रहा है इसके पीछे? हाँ स्टूडेंट्स। हाँ सर। और वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से, पुल ऑफ द अर्थ की वजह से, यानी जैसे जैसे बॉडी पुल ऑफ द अर्थ एक्ट हो रहा है, तो बॉडी का स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग, फाइनली एट अ सर्टेन पॉइंट वो 0 हो जाएगा, फिर उसका फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, फोर्थ वन क्या पूछा, वेलोसिटी विद व्हिच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। हाँ स्टूडेंट्स, विद व्हाट वेलोसिटी इज गोइंग टू रिटर्न टू द ग्राउंड, जल्दी बोलो। 98. यू आस्किंग मी लवदी? लवदी you asked me? 98 मीटर नहीं, पर नहीं, नहीं, सेकेंड। नहीं, 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 you asked me. You asked me. The way you said it, you asked me. You didn't reply the answer. Those I am telling. No, no, no. You are that there was a question mark in your answer. Students, come on, rest of you all. Velocity with which it returns to the ground. क्या होगा? With what 98 velocity? मीटर पर सेकेंड। Absolutely correct. देखो अभी कशिश ने देखो कैसे आया, कशिश बताओ, बताओ। According to the first equation, we can use v equals to u plus at.
and then we can use so initial velocity 0 हाँ plus 9.8 into 10. Didn't you say that the speed with which object is thrown, the same speed it will come down? I know that, my dear Lavdi, this is the way to get your MCQs correct, but I asked you how do you prove it? तो कशिश proved it. कशिश ने भी क्या बोला? कशिश ने भी क्या बोला? फोर्थ के लिए उसने कौन सा इक्वेशन यूज किया? For a body to move down उसने किया v is equal to u plus kt, है ना? हमने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सा टाइम ऑफ फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी, ये कौन सा फाइंड आउट किया था? ये टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट किया था ना, टू रीच द मैक्सिमम हाइट. आई गेटिंग इट? फाइनल वेलोसिटी 0 होगा एट मैक्सिमम हाइट, वी कंसीडर द टाइम ऑफ असेंट कितना था? 10 सेकंड्स. अगर टाइम ऑफ असेंट 10 सेकंड्स है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट? 10 सेकंड्स. यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर। अभी ध्यान से देखना, बॉडी अगर तुमने ऊपर से ड्रॉप किया, अभी देखो ये दो मेथड, प्लीज दो मेथड, एक है लाब्दी का मेथड और एक है माई सेल्फ. प्लीज एवरीबॉडी ध्यान से सुनना. लब्दी ने क्या बोला था? सर जब भी आप बॉडी को नीचे की तरफ, ये देखो ना, ये बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आपको वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी लब्दी क्या लेगी? 0 लेगी. मैं भी क्या लूंगा? 0 लूंगा. लब्दी के हिसाब लब्दी ने अपना स्पेलिंग, लब्दी ने अपना स्पेलिंग मुझे बताया. ओके, लाभ, लाभ, BH. ओके, लाभ. ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0. I getting it? Now when it's coming down, according to Labdi, what exactly acceleration will be? उसने क्या लिया? प्लस जी लिया. मैंने acceleration क्या लिया? माइनस जी लिएगा. मैंने बोला ना, दो तरफ नेगेटिव ले लो. टाइम ऑफ डिसेंट दोनों केस में क्या होगा? 10 सेकेंड्स होगा. कैन यू गेट एन आंसर? हाँ स्टूडेंट्स, कैन यू गेट एन आंसर? तो लब्दी के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली? v is equal to 0 g into टाइम ऑफ डिसेंट. तो लब्दी के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? 9.8 into 10. व्हाट इज द आंसर? है ना? जो वेलोसिटी से तुमने ऊपर फेंका था वही वेलोसिटी से हाथ में आया. लेकिन क्या लब्दी को आंसर नेगेटिव में मिला है? नहीं मिला. मोशन किस तरफ है? बॉडी नीचे की तरफ ही आ रहा था ना. हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन क्या लब्दी को नेगेटिव आंसर मिला? नहीं मिला. लेकिन मैं जब सॉल्व करूंगा तो देखो v, ये तो 0 है, a को अगर मैं माइनस जी लूं, टाइम ऑफ डिसेंट इज द सेम, तो मेरा आंसर क्या होगा? -9.8 into 10. मेरा आंसर क्या होगा? -98 मीटर पर सेकेंड. What does negative sign shows over here? Motion downwards. समझ में आया स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा था? जी को तुम पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन जब तुम पॉजिटिव लो तो दिमाग में रखना कि ये प्रॉब्लम तुम फॉल के लिए सॉल्व कर, और यहाँ पे तुम्हें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया, उसका मतलब द बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स and the velocity with it strikes the ground will be 98 meter per second. So जो velocity से तुमने ऊपर फेंका था वही velocity से वो नीचे आ रहा है. तो ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो लब्दी ने डायरेक्ट आंसर दिया, लेकिन वो आंसर क्वेश्चन की तरह दिया. और फिर उसने बोला कि सर आपने ही बोला था जो वेलोसिटी से बॉडी ऊपर फेंकोगे वो वेलोसिटी से नीचे आता है. फेयर इनफ, करेक्ट है वो. लेकिन फिर मैंने उसको प्रूव करने के लिए बोला, तो कशिश ने प्रूव किया. कशिश ने प्रूव किया लब्दी का मेथड से, बिकॉज लब्दी की बेस्ट फ्रेंड है वो, तो उसके हिसाब से उसने आंसर लेके आया. और मैंने फिर अपने मेथड से किया तो माइनस आया. लेकिन इन बोथ केसेस थिंग्स आर करेक्ट. हाँ यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स तुम लोगों को? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. प्लीज स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर। यस सर। Anu, what about you? Anu, Bhairavi, you're not replying. Amira, Anu, Bhairavi, you're not replying at all. Yes, sir, got it. Okay. Dhruv, what Yes, about you? sir. Okay. Dhruv, Janvi, Khan Mohammed, Krish, Krishit, Mayank, Paneri, Prachi, Mayank, Paneri, Prachi, ये सारे चुप बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं यार. This is really bad.
रक्षंदा, सानिया, ये सारे टीकू घाटे के स्टूडेंट्स हैं। इनको कभी मुझे है ना, आई नीड टू कॉल देम यार, एक दफे उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी है मुझे, क्योंकि सबके भी मुझे दिमाग में नाम याद रह गया है, क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। स्टूडेंट्स आगे जाके बहुत पछताओगे अगर तुम नहीं समझ में आता तो अभी पूछो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, डोंट टेक ब्लाइंडली, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं आएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। ओके, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, है ना? टोटल टाइम टेकन विल बी टाइम ऑफ 20 seconds. असेंबली, तो 20 सेकेंड्स होगा टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। गेट इट स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फिफ्थ वाला टोटल टाइम विल बी 20 seconds. Is that clear? Yes. Yes, sir. Okay, now please solve 14th and 15th. Please now solve 14, 15 and 16. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ मैं पूरा? हाँ. Solve 14th, 15th and 16th, please. One who जो तीनों complete करते हैं, please. One who finishes all the three, raise your hand up, please. Fast. I'm giving you 4 minutes. Please solve it fast, please. Ashish has got the answer for the next one. Okay, 14th वाला क्या है students? Can you tell me 14th? I'll read the question. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second. So an object is thrown vertically upwards with an initial speed of 19.6 meter per second, students. From top of a tower. Oh, it's thrown with a speed of 19.6 seconds. यानी एक टावर के ऊपर से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, ये टावर है. Okay. So you're throwing an object from the top of a tower. So your speed is 19.6 meter per second. Strikes the ground in 6 seconds. So ये बॉल ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे की तरफ आता है. Okay. Total time taken is equal to how much? 6 seconds to strike the ground. Find the height of the tower.
Yes, anybody? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? Let me take this as point A, this is point B, this is point C, this is point D. Coming back to point A, E, ground. Yes, students, can anybody answer this? 14th one? 58.9. 58.9. Now this is Kashish only, you only answering Kashish? Yes, मुझे sir. कशिश के अलावा कोई आंसर दे सकता है? तो मैं करूँ? कशिश के अलावा यानी लब्धि के अलावा यानी कशिश, है ना? हाँ बोलो लब्धि बोलो। We should use b is equal to u plus 80. Then after substituting, we can use s is equal to ut plus half No. 80. Wait. You said it v is equal to u plus 80 से करूँगा क्या मैं? भजन करूँगा या कीर्तन करूँगा? क्या करूँगा? सर एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. कैसे एक्सेलरेशन की जरूरत है ना बॉडी को? तुम टाइम टोटल टाइम सेकंड दिया है ना, तो तुम ये टाइम यहाँ का टाइम निकाल दो ना स्टूडेंट्स. तुम अगर सपोज तुम बॉडी को ऊपर की तरफ भेज रहे हो और यहाँ पे लेके आ रहे हो तो यूज दिस ना एट मैक्सिमम हाइट. कहने से फाइनल हम पहले टाइम ऑफ असेंट के बारे में जाते हैं. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. टाइम ऑफ असेंट कहने से इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. अगर बॉडी बी से लॉन्च किया है और वापस डी पे आता है तो वेलोसिटी सेम होगी, हाँ या ना? हाँ. वाला कंसेप्ट मैंने बताया था. जो स्पीड से तुमने फेंका है उसी लाइन में अगर वापस ऑब्जेक्ट आता है तो उसका स्पीड 19.6 ही होगा. स्टूडेंट ध्यान से सुनना. तुम टेरेस पे हो, टेरेस पे से तुमने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका. लुक एट माय फिंगर. अगर तुमने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका विद 19.6 मीटर पर सेकेंड और जब भी वो बॉल एग्जैक्टली तुम्हारे आंखों के सामने उसी पॉइंट पे आता है और फिर वो नीचे जाता है तो उस पॉइंट पे जब भी द विजन इज एग्जैक्टली स्ट्रेट तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 19.6. तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होगा. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0. इनिशियल कितना है? 19.6. एक्सेलरेशन क्या होगा? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैं माइनस लूंगा वर्टिकली अपवर्ड्स है, और मैं टाइम ऑफ असेंट निकालूंगा. तो टाइम ऑफ असेंट का आंसर मुझे क्या होगा? 19.6 अपॉन 9.8. तो कहने से 2 सेकंड्स हो जाएगा. यानी बॉडी को ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड, बॉडी को नीचे आने के लिए कहां तक? टिल पॉइंट डी. टिल पॉइंट डी इज इक्वल टू 2 seconds. So what is the time of ascent plus time of descent? Total is 4. So what exactly time taken from D to E? D to E. तो कहने से 6 minus 4 seconds. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ. यस सर. है ना? ये देखो ना, ये 2 seconds ऊपर जाने के लिए, 2 seconds यहाँ तक आने के लिए टोटल टाइम 6 seconds दिया है. तो यहाँ पे कितना होगा? ये 2 सेकंड होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ सर, ये तो 2 सेकंड आ गया. अभी देखो, अभी तुम्हें इनिशियल स्पीड पता है ना? टाइम पता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पता है. एस पूछा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी 80 स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर. एवरीबॉडी, आई एम नॉट टीचिंग टू स्टूडेंट्स प्लीज. मैं दोनों का प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले रहा हूँ. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है. 22 स्टूडेंट्स आए इनटू द रूम. यश, विशाल, तेजस, सोहम, श्याम, सान्या, रक्षंदा, प्राची, पनय. हे भगवान, थक गया इनका सबका नाम लेते लेते. पेरेंट्स भी बोलते रहेंगे सर कैसा है, हमेशा सबके नाम लेके बुलाता. पेरेंट्स को बोलना कि नाम इसलिए लेता है कि हम सो न जाए इसलिए. नहीं, ऐसा मत बोलना. पेरेंट्स को ये बोलना कि सर हमेशा चिल्ला के बात करते हैं, नाम लेते हैं कि सर खुद न सो जाए. है ना? है ना? अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट? अभी हम यहाँ पे 2 मेथड आते हैं. स्टूडेंट्स बता सकता है कोई कौन से 2 मेथड? हाँ स्टूडेंट्स, कौन से 2 मेथड? एक लब्धि वाला और एक मी. लब्धि सर ने नया मेथड क्रिएट किया है, लब्धि मेथड. हाँ, लब्धि मेथड. ओके, जो ए को जी लेंगे और मैं क्या लूंगा?
ए को माइनस जी। अभी देखो हम निकालते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, एस को मैं एच लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 19.6 है ना, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 सेकंड्स। उसने क्या किया है प्लस हाफ, क्योंकि वो ए को क्या ले रही है 9.8 इंटू 2 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। Yes, sir. एग्रीड? हाँ या ना? सर इज इट क्लियर? तो इसका Yes, आंसर sir. 19.6 into 2 39. What exactly it is? 19.6 into 2 6 2 are 12 39.2 39.2 ये होगा 2 स्क्वायर 4 यानी ये 19.6 होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 30 58.8 58.8. है ना। तो लब्धि के हिसाब से देखो क्या आंसर आया, और ये आंसर पीछे मैच हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर. यानी लब्धि करेक्ट है। अभी मेरे मेथड से जाओ, तुम बोलोगे सर आपके मेथड से अगर हम जाएंगे ना सर तो हम पागल हो जाएंगे। देखो एच वापस वही फॉर्मूला तो वही होगा, यूटी प्लस हाफ, लेकिन आपने जी को माइनस लेने के लिए बोला सर। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा 39.2 माइनस 19.6 आएगा ना, आया ना। Yes, sir. तो लब्धि करेक्ट है या मैं करेक्ट हूँ? सर वो मैं डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन करेक्ट है. यानी 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 कशिश एक ही प्रॉब्लम के दो अलग आंसर। हाँ, एक बोलता है कि वहां से हाइट 58 पॉइंट, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाने जा और तेरे को किसी ने सिविल इंजीनियर बना दिया तो तेरे हिसाब से 58.8, और दूसरा सिविल इंजीनियर बोलता है उससे कम, तो किसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? टावर तो बनाना है ना, तो परफेक्ट हाइट क्या होनी चाहिए? कुछ भी, दोनों आंसर हो सकते हैं, दो अलग अलग टावर। नहीं सर, मैंने बोला कि सिचुएशन के हिसाब से आंसर होता है. वेरी गुड। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे सही कौन है? हाँ, लाभदी. लाभदी इज करेक्ट ना, लाभदी लाभदी लाभदी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैंने एक्सेलरेशन को नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है ना, तो what is the speed of the vehicle also, the speed of the body is also coming in what direction, the body is coming in what direction, downward. So should I take u as positive या u को भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा? यू को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा. जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया था वो लेना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन में आता है मालूम है स्टूडेंट्स। भले तुम जी को नेगेटिव ले लिया वो करेक्ट है, लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी नेगेटिव। तो मेरा आंसर देखो किस में आया, मेरा आंसर आएगा -58.8 मीटर। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किसका ज्यादा सही होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 58.8 मीटर, व्हाट डज नेगेटिव साइन शोज? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड लब्धि का आंसर क्या होगा? हाइट ऑफ द टावर इज 58.8 मीटर। ये देखो दोनों को मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, the object is falling down to the ground and the displacement is 58.8 meter vertically downwards, और जब इसका आंसर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब the height of the tower is 58.8 meter, यानी even in her case it is correct, even in this case also it's correct। लेकिन बहुत ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब भी तुम जी को नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, इसको अवॉइड ही करते हैं, वो जी को नेगेटिव नहीं लेते थे क्योंकि वो कंफ्यूजन में आते हैं। अगर बाई चांस तुमने इसको मिस कर दिया तो प्रॉब्लम गलत चला जाएगा। देखो ना अभी दो डिफरेंट आंसर आना शुरू हो गया था। लेकिन दिस मेथड आल्सो यू शुड नो इट टू क्रैक सर्टेन गुड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। क्या अभी ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स 14th वाला?
Students clear? sir. Yes, sir. It's only that Lavdi is saying it clear. यार पता नहीं यार, सानिया ने आप ही बोला. Sania, you said it, yes? Yes, sir. Okay, thank you. What about the rest of the students? Dhruv? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Amira? Okay, Krish is saying it, yes. Janvi, what about you? Janvi, Dilsha? Janvi, Dilsha? Kahan ho? Knock, knock. Are you all there? Yash, are you there, Yash? Vishal, Tejas? Okay. श्याम समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्राची, so हमने टेक्स्ट किया है. प्राची, what about you, Prachi? प्राची, what about you? देखो इतना बोल रहा हूँ फिर भी रिप्लाई नहीं, यानी वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं मालूम है, सो रहे हैं. स्टूडेंट्स वो सिर्फ एंटर हुए लेकिन वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है. Okay, students, now let us go for the next one. Students, come on, pass 15, 16. 15th अच्छा वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. A ball is thrown vertically upwards and is caught by the person who threw the ball after 4 seconds. I gotta get. A ball is thrown vertically upwards and is caught by a person who threw the ball after 4 seconds. तो यानी बॉल को तुमने ऊपर फेंका है और उसको वापस पकड़ लिया है after 4 seconds. And the time of ascent is equal to time of descent, and that is equal to 2 seconds. Agreed? How high did it go? यानी तुम्हें H max पूछा है. How high did it go? And with what velocity was it thrown? What was the initial velocity? What it was thrown? Same velocity यहाँ पे भी होगी when it comes back. How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से सुना क्या पूछा है. How far was it below the highest point? ये मैं नहीं बताऊंगा अभी. ये सेकंड पार्ट मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ. और जो स्मार्ट बंदा होगा, स्मार्ट स्टूडेंट होगा, उसी को वो क्रैक करने के लिए मिलेगा. समझ के करना स्टूडेंट्स. Try to understand the English. वापस बोल रहा हूँ. How far was it below the highest point? 3 seconds after it was thrown. Take acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square and not 10. Anybody who has got the answer for the 15th? Yes, कोई बता सकते हैं? Vervi, are you there? Vervi? Yes, sir. Answer दो Vervi. How far was it below? Okay, सबसे पहले can you find out the maximum height, students? Yes, sir. वो कैसे निकालोगे? So UD plus half 80 square. Okay, लेकिन initial velocity नहीं मालूम. U भी नहीं मालूम, H भी नहीं मालूम. सिर्फ time of ascent, time of descent दिया है. तो V0 होगा ना. हाँ तो पहले तुम U निकालोगे ना. Getting it? U तो V equals to U plus 80. क्या बात है, वेरी गुड. हाँ तो इक्वेशन क्या होगा? V is equal to U plus 80 at maximum height. What about the final velocity is 0. Initial तुम्हें नहीं पता. Acceleration will be acceleration to gravity जो -9.8 होगा.
ये टाइम ऑफ असेंट कितना होगा 2 होगा. So what is the initial speed? 19.6. 19.6. Once when you get this, can I get the maximum height? Yes, S is equal to UT plus half AT square होगा, है ना? तो maximum displacement, initial velocity कितना है? 19.6. ये time of ascent होगा. Maximum height चाहिए ना तुम्हें? Time of ascent, how much is the time of ascent to go up? 2 seconds. Plus half into ये acceleration तुम्हारा acceleration due to gravity होगा. लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो will you take it positive or negative? Negative. So minus 9.8 into t square यानी 2 square होगा. Are you getting it, students? हाँ sir. तो ये s क्या होगा? What is 19.6 into 2? 39.2. आया ना? हाँ. Plus or minus 2 2s are 4, so 19.6. So what exactly the displacement cover is how much? 19.6 meter. Yes, 19.6 meter. Yes. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ sir. अभी मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, क्या मुझे इतना ये करने की जरूरत थी? हाँ कशिश? हाँ सर, करने की थी. जरूरी था ये? हाँ. हाँ सर. इसके बीच में मुझे आंसर नहीं मिलता था ना? नहीं सर. मिल सकता था. कैसे सर? ध्यान से सुनना, rather than going upwards, मैं ड्रॉप के लिए लेता हूँ ना. Students, what is the initial velocity? उसी maximum height से अगर मैं ड्रॉप करूंगा, what is the initial velocity? 0. Can I use S is equal to UT plus half AT square? और लब्धि का लेते तो प्लस जी लेता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो S is equal to what? Half into 9.8 into t square, that is 4. 2 2s आ गया मेरा आंसर 19.6 मीटर. हाँ स्टूडेंट्स, आ गया? यस सर. क्या ये क्लियर हुआ? ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द ग्रुप, प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम फीलिंग इट हार्डली. यार तो सर अपवर्ड्स का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था ना? हाँ तो मैं, अरे ये तो लब्धि का हिसाब से लिया ना मैंने यार. तुम लोग लब्धि पर वो नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है. जा रहा है. अरे माय डियर, लेकिन मैंने अगर ऊपर जाने के, मैं जो कंडीशन ऊपर के लिए वही कंडीशन मैंने नीचे से लिया. ऊपर से अगर वो ड्रॉप होता है, मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप करोगे, मैक्सिमम हाइट से बॉडी नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना. हाँ, मैक्सिमम हाइट पे जब भी बॉडी पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. उसी टाइम पे उसका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा? 0. है ना. और फिर यहाँ पे आएगा तो Vmax होगा. वाह रे वाह कशिश, वाह रे वाह, मेरी तंगड़ी ऊंची की ऊंची, जो मैं बोलूं सो निहाल, सस्त्रियाकाल, है ना. इसलिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया, जानबूझ के मैंने ये इम्पोज किया. मैंने अपने आप को लब्धि पे और कशिश पे इम्पोज किया. मैंने अपने आप को थोका उनके ऊपर कि विदाउट यू हाउ कैन यू गेट इट. तो उन्होंने ये पैटर्न क्रिएट किया जो सही था. गलत नहीं है ये भी, क्योंकि यहाँ पे मोशन नीचे से ऊपर जा रहा है. लेकिन तुम सोच सकते थे कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर गया और वो मैक्सिमम हाइट तक गया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगा. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. डिस्टेंस कवर्ड, हाँ सर, जो डिस्टेंस ऊपर के लिए होगा वही डिस्टेंस नीचे के लिए होगा. टाइम ऑफ असेंट क्या है? इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो टाइम ऑफ डिसेंट भी तो 2 सेकंड था. अभी मैंने ये लब्धि का फॉर्मूला लिया है, इसलिए मैंने माइनस नहीं डाला. लेकिन अगर मैं करता हूं, अगर मैंने माइनस डाल दिया तो मेरा आंसर माइनस 19.6 आता. माइनस 19.6 का आंसर मतलब क्या है? मोशन इज डाउनवर्ड्स. सो व्हाट इज द बॉडी इज गोइंग अप. मुझे तो हाइट ही चाहिए ना. क्या हाइट से वो बॉडी जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, हाइट विल बी द सेम. क्या ये क्लियर हुआ? यस सर. यस सर क्लियर. जैसे लग रहा है स्टूडेंट्स, ये लब्धि आ रहा है ना कशिश, मेरे को रुलाने वाले हैं, फील हो रहा है मुझे, है ना. अभी बताओ, सेकंड पार्ट कौन बता सकता है? सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ फाउंडेशन 2 GT will be able to answer the second part. सर मुझे मिला है बट आई डोंट नो कि उसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ.
Wait a minute, मेरे को क्वेश्चन बोलने दो. How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? Oh, हाँ, आफ्टर 3 सेकेंड मतलब एक ही सेकेंड का हुआ ना. अब 4 सेकेंड तो लग रही है. लवली तो बहुत स्मार्ट है. हाँ, तू ऐसा ऐसा हाँ करती है ना, तो तू जानबूझ तू आंसर पूछ रही है, तू सोल्यूशन नहीं दे रही है. नहीं सर, ये लॉजिक सिर्फ ऐसे दिमाग में आया था इसलिए मैंने सिर्फ बोला. हाँ हाँ, सर. वेरी सर गुड मैं दूं श्याम. आंसर मैं दूं. See, श्याम नहीं 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 नहीं, श्याम इज सो वेल मैनर्ड. देखो श्याम अपना हाथ रेस कर रहा है. देखो, यस श्याम बोलो. सर मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. हे भगवान, देख तेरे संसार की हालत. यस बोलो श्याम. सर इसमें हम लोग वो एसेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नहीं माय डियर, थोड़ी बोला है कि nth सेकंड में पूछे, थोड़ी बोला है. ओके सर, ओके, कुछ नहीं, कुछ nth सेकंड के लिए नहीं बोला ना. ओके, अभी कौन आंसर देना चाहता है? कशिश आंसर देने चाहती है या लवली आंसर हाँ देने सर, चाहती हाँ सर. है? मैं. ओके बोलो. तो सर यहाँ पे तो 1 सेकेंड ही टाइम मैक्सिमम हाइट होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो 1 सेकेंड पे होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t. तो हम यूज कर रहे हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एब्सोल्युटली करेक्ट. टाइम ऑफ असेंट स्टूडेंट्स 2 सेकंड्स होगा. मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे 2 सेकंड्स होगा, नीचे आने के टाइम पे 2 सेकंड्स होगा. तो कहने से 1 सेकंड में समवेयर बॉडी यहाँ पे होगा. ये ए, ये बी, ये सी और डी, ये 1 सेकंड. क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट टोटल 2 सेकंड्स होगा. उन्होंने पूछा है आफ्टर 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड्स पे बॉडी यहाँ पे है. तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 3 सेकंड मीटर फ्रॉम द 3 सेकंड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन. आई गेटिंग इट? फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट. यानी यहां से यहाँ पे ये तुम्हें पूछा गया है x, यानी तुम्हें x पूछा है. तो what exactly the time taken for this 1 second? तभी जाके what exactly Kashi said it. Sir, s is equal to ut plus half a t square. What is the initial velocity will be equal to? 0. 0. देखो 0 हो जाएगा. Half into what is the acceleration? 9.8, 4.9 What is the, मीटर. what is the time taken to move from here till here? 1 सेकेंड. 1 second. क्योंकि टोटल 3 seconds हो जाएगा और 1 second ये है, तो तुम्हें टॉप मोस्ट से 1 second लेना है. तो what is the answer? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. Yes, sir. यस सर, क्लियर सर. Okay, fine. Those have done with the 15th one, please go ahead with the 16th one, 17th. 17th is a good question. Solve 16th and then 17th students. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? हाँ सर. यस. Okay. Please finish both the problems and then you can raise your hands, please. Or you can text your answer. Don't speak out the answer. You can raise your hands or you can text, please. I'm speaking about question number 16, question number 17.
Kashish has got the answer for the one. Which one it is? Means 16th one. Can you give me the answer for the 16th one now, Kashish? 16 one, sir. हाँ बोलो 16th one. Initial velocity दिया है 9.8 meter per second. I'll give the data, students. It's 9.8 meter per second दिया. Agreed. The height they have given to you, the displacement of the height is given to you as how much? 39.2 meter. Okay. Above the ground, when a full packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does the packet reach the ground? So after how much time and what velocity it reaches the ground? Can you tell me now? So we can use S equals to UT plus half AT square, where S is given, U is given. Okay, UT plus half AT square. Then S कितना दिया है? It's 39.2. 39.2. Okay. 9.8 and you're trying to find out time? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's time. लेकिन दोनों दिन से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा रहे हो? हाँ सर, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया. Yes. यानी प्लस और ये क्या होगा? माइनस हाफ इंटू 9.8 होगा इंटू टी स्क्वायर होगा. Agreed? Yes, sir. Now in this case ये 39.2 होगा, ये 9.8 होगा minus 4.9 टी स्क्वायर. Is it like this? Yes, sir. Yes, sir. Can I divide by 4.9 throughout? तो तुम्हारा रिड्यूस फैक्टर आएगा कि नहीं? Yes, sir. So how many is 39.2? How many times? Sir, 1 second, sir. Oh, Sir, but we can take T squared at side, no? क्या बोल रहे हो? सर ये टी स्क्वायर को सब्जेक्ट लेके हम कर सकते हैं ना, फिर आएगा 2t माइनस 8. नहीं ये मैं बोल रहा हूँ, क्या पूरा इक्वेशन 4.9 से डिविजिबल है कि नहीं है? Yes, sir. 4.9 how many is 39.2? eight. आया ना 8. 8. ये 2t minus t square. Yes, sir. Yes, sir. आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Yes, sir. लेकिन अभी ये तुम्हारा सॉल्व हो रहा है. हाँ Sir, we can take t square minus 4t plus 2t minus 8. t square minus 4t. Why 40? हाँ sir, that factor of 8 into t square 8t square. Quadratic equations ना? हाँ तो sir 4 into 2 8. Yes, so t square minus 4t plus 2t. लेकिन तुम्हारा माइनस चाहिए दोनों. ये तुम्हारा प्लस 8 है ना, तो तुम्हें कैसे मिलेगा ये -4 और +2 कैसे आएगा? -4 सर माइनस सर बताओ अभी. सर टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -8 आ जाएगा ना. 8 राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा. टी स्क्वायर को इस तरफ लूंगा ना, +2t हाँ. माइनस +8 तो वैसे ही होगा ना, +8 तो वैसे ही रहने वाला है. सर लेकिन 2t वो साइड क्यों लोगे? अरे यार आशीष, तू बोल रही है 8 + 2t, सॉरी यू मीन टू से टी स्क्वायर को इस तरफ लेता हूँ मैं. हाँ 2t माइनस 8. हाँ 2t - 8. चलो अभी सर वी कैन सॉल्व विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अरे लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे एक तरफ तो लेना पड़ेगा ना. हाँ सर.
So now how do you go for it? Sir, t square plus 4t plus 2t plus 8 T square plus plus 4t plus 2t हम्म plus 8. प्लस 2t प्लस 8। तो मुझे यहाँ पे माइनस कहाँ से मिल रहा है? मुझे तो 4 + 2 6 आ रहा है और यहाँ पे तो माइनस तो दिया है। ये हो सकता है सॉल्व, हाँ ये हो सकता है सॉल्व। my dear, they are saying it that the body is made to fall down. The body is made to fall down vertically downward, students. जो तुमने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया ही नहीं है, तभी जाके तुम्हारा सर आंसर नहीं आ रहा। यहाँ एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है ना? अरे मेरे डियर, तो तुमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव आएगा ना, तो तुम्हारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ यस पे सर। इसलिए मैंने बोला यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने हमेशा तुम जी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या था मालूम है? अ पैकेट हैज बीन ड्रॉप्ड। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, यस और नो? हाँ तो सर, पैकेट has been dropped, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड्स ना। इसको सॉल्व करो तो तुम्हें लगेगा सर टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। सो t इंटू ब्रैकेट t माइनस 4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट t माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t प्लस 2 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू माइनस 2 equal to सेकेंड। minus 2 टाइम कैन नॉट second. बी नेगेटिव, टाइम Two, कैन so it टाइम is कैन नॉट 4 बी नेगेटिव second. फॉर 2 सेकंड्स। लेकिन ये कभी सही मिलेगा जब भी डिस्प्लेसमेंट तुम मैं वर्टिकली। नेगेटिव लोगे। स्टूडेंट्स, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो इसलिए मैं बोला बहुत ध्यान से समझ के सोच समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि सारे प्रॉब्लम में तुम एक इक्वेशन डाल दो, तुम यहाँ वहां करके आंसर निकाल लोगे, ऐसे नहीं होता। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स? यस सर। एवरीवन, अभी तुम बताओ, वेलोसिटी डज द पैकेट रीचेस द ग्राउंड? विद व्हाट वेलोसिटी द पैकेट रीचेस द ग्राउंड? V is equal to U plus 80 अभी लब्धि के हिसाब से आता है, चलो बोलो। minus 9.8 ये क्या है? plus 9.8 minus हाँ, माइनस 9.8 प्लस इंटू ब्रैकेट 9.8 into 4 विल बी प्लस और माइनस। plus तो अगर तुम एक्सेलरेशन को प्लस लेते हो बट और प्लस u कैसे को नेगेटिव आएगा? लेते हो, तो लब्धि यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर माइनस जी तुमने आएगा इसको ना? नेगेटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लो। तुम मेरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तुम तुम्हारा फॉर्मूला यूज करो ना। तुम क्या करते थे? v is equal to u is how much? 9.8 plus acceleration is how much? 9.8. What is the time for it to come down? 4 seconds. Is it? yes यस सर। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? बताओ। 29.4. लेकिन ये नेगेटिव है, तो 9.8 माइनस व्हाट इज 9.8 into 4 स्टूडेंट्स? 8 4s are 32, 9 4s are 36 and 3 39. What is 39.2 minus 9.8 कितना होगा स्टूडेंट्स? 29.4 What is negative sign shows? Negative sign shows का मतलब क्या है? Motion is in what direction? Downward. Downwards sir. Yes, Shyam, you are raising hands. बोलो श्याम, क्या बोल रहे हो? सर ये हम लोग ने जो टाइम निकाला वो लाब्दी वाले मेथड से नहीं हो सकता है क्या? तो वो you can't remove in that case because motion नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड की तरफ है। अभी फॉर्मूला उन्होंने ये यूज किया। मैं अगर मैं चाहता तो मैं क्या करता है? आई कुड हैव गॉन फॉर सिंपल फॉर्मूला। आई कुड स्टूडेंट्स गो फॉर v square is equal to u square plus 2as लेता मैं, और सबसे पहले you can find out the velocity 9.8 the whole square plus 2 into 9.8. Are you getting it? And what exactly the displacement I'm getting in terms of 39.2 दिया है, तो मुझे v मिल जाता, पूरा आंसर v मिल जाता तुम्हें रूट निकाल के, और फिर मैं यूज करता v is equal to u plus 80, तो आंसर मिल जाता मेरा।
लेकिन उन्होंने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया तो मैंने ये फॉर्मूला से सॉल्व किया। स्टूडेंट्स ये तुम्हारे पे डिपेंड हो कि तुम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। इक्वेशंस तुम यूज कर सकते हो, एनी इक्वेशंस यू कैन गो फॉर इट, लेकिन बहुत ध्यान से और केयरफुली देखना है। यस सर अभी मैंने जो बोला था ना u माइनस 9.8 लेते हैं एंड g के बदले एक्सेलरेशन लेते हैं एंड एक्सेलरेशन वी कैन टेक पॉजिटिव। यस, द रीजन इज व्हाई अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो मेरा आंसर समेशन में आएगा। नो, आई कांट टेक इट इन दैट केस। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज 9.8। आई विल कंसीडर इन दैट केस। बट सर जब आपने बोला कि u को माइनस में लेते हैं तो g को माइनस में ही लेंगे ना। हाँ लेकिन वो फ्री फॉल के हिसाब से होगा, लेकिन इनिशियल कहाँ पे, द बॉडी एट दैट इंस्टेंट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल। हमें फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया, ये टाइम ऑफ डिसेंट के हिसाब से लिया। बॉडी एट दैट इंस्टेंट इज 9.8, इनिशियल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज 9.8, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड द मोशन इज क्रिएटिंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज व्हाई यू कांट कंसीडर दैट। तुम ये कंसीडर करो ना, ये तुम्हें आंसर और सही तरीके से मिल जाएगा। नाउ व्हेन यू लुक इनटू दिस, तुम्हारा ये फॉर्मूला इसके साथ मैच हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हें v मिल गया है, u तुम्हें मालूम है, g and t, you can get your answer accordingly, whether you throw body vertically upwards or whether you throw body downwards, it's one and the same. Now students, can you give me the answer for the 17th? 17th is a good one. Anyone who can give me the answer for the 17th one? Fast. 15.1। हाँ, मिल गया तुम्हें? हाँ सर। And क्या आंसर आया? What answer you got it? 15.1 meter from the ground। Absolutely correct. Now tell me, how did you do it? Please, everybody listening for the 17th one, okay? Yes, bolo. 17th. Sir, let the acceleration of both ball be a and a equals to minus g and a b equals to minus g. Mm-hmm. And let the velocities be va equals to 20 meter per second and vb equals to minus 20 meter per second. Okay. The initial velocity of both the bodies is the same. Consider a and b. Now. Yes, sir. So relative acceleration will be a minus b, which is equals to 0, and relative velocity will be a minus b, 40 meter per second. Okay. So we are using formula s equals to ut plus half at square. Absolutely correct. So s equals to 40 meter, u equals to 40 meter per second, and a equals to 0. So time is s upon v. So 40 upon 40, which is 1 second. Proper. So यहाँ पे देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है. Try to understand this question, students. It's a very simple one. The answer सुनो students. दो बॉडीज दिया है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. आप थ्रोन साइमल्टेनियसली ए को हम लोग ने प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ किया है, बी को नीचे की तरफ ड्रॉप किया हुआ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड, and B is projected vertically downwards from a height 40 meters with the same speed and along the same line. Both of them are pointing towards each other. At what point do the two bodies collide? कहाँ पे उनका collision होगा? Let us say the collision is at point X. तो अगर collision X पे है, एक का X है तो दूसरे का 40 minus X होगा. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स? हाँ सर। तो can you find out the displacement of B? अगर मैं B के हिसाब से जाऊँ स्टूडेंट्स, तो can you give me the formula for displacement? तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा हूँ? S is equal to ut plus half at square students. I can use this particular formula. तो displacement इसके लिए कितना है? 40 minus x. Agreed? Initial velocity कितना होगी? 20t. Agreed? Plus half into 9.8 into t square. Okay? Since all of you are habitual with Lambda method, I'm going for Lambda method itself only. अगर मैं मेरा मेथड होता तो दोनों तरफ में नेगेटिव लेता, तो मैंने पॉजिटिव में ही रखा है. क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ इक्वेशन? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir.
अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। 40 माइनस 20t ये हो जाएगा 4.9, लगने से माइनस 4.9t स्क्वायर। एग्रीड? 40 minus 20t, this I'll consider as how much? Will be 4.9t square. I can consider in that case. Is that clear? Yes, And then I can make it in terms of x. ये मैं x को सब्जेक्ट बना सकता हूँ स्टूडेंट्स, x को एक तरफ लिख सकता हूँ मैं। हाँ स्टूडेंट्स, agreed? Yes, sir. Now if I happen to go for body which is falling when thrown vertically upwards, what exactly the acceleration due to gravity taken as negative? तो इसके लिए तुम कौन सा यूज करोगे? वही फॉर्मूला s is equal to ut, है ना, हाफ 9.8 into t square। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ, तो देखो x is equal to 20t minus 4.9 t square। ये देखो ये भी x में मैंने लिखा है, ये भी x में लिखा है। Can I equate the two equations students? हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो ना, ये भी मैंने x सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे भी x, दोनों को इक्वेट करो ना। 40 minus 20t minus 4.9 t square is equal to 20t minus 4.9 t square। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20t यहाँ पे आएगा, तो 40 is equal to 20t plus 20t। So what exactly time is equal to 1 second? Did I get the time for them to meet? Yes, time is taken 1 second. What I need to find out? X. What is the formula for x? 20t minus half 9.8 into t square. Put t as 1 second. 1 square. So that will be 20 minus half into 9.8. So can I say x is equal to 20 minus 4.9? Yes, What is my- sir. What is my answer? 15.1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने ये मेथड मैंने लब्धि के हिसाब से किया, दोनों पॉजिटिव में ही रखा मैंने। लेकिन मैंने किया क्या मालूम, मैंने x को एक तरफ ले लिया, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले लिया, तो ये मेरा इक्वेशन हुआ। फिर इसके लिए मैं चला गया, फॉर्मूला ये ले रहा हूं मैं, ये मेरा इक्वेशन हुआ। ऊपर की तरफ दूंगा तो g को मैंने नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे भी मेरा x सब्जेक्ट हुआ। फिर मैंने किया क्या मालूम स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इससे मैंने इक्वेट कर दिया, ये दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिए। अगर मैं इक्वेट करता हूं तो माइनस 4.9 माइनस 4.9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 20 यहाँ पे आएगा, तो 40 हो जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर द कोलिजन इज हाउ मच? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद में दोनों का कोलिजन होता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड? तो x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ 15.1 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, can anybody solve question number 22nd? Solve question number 22nd. Come on, fast. Can I erase this, students? ये erase कर दूं मैं? Students, can I erase this? हाँ sir. Okay. Let's see who can get the answer for the 22nd. A stone is dropped from a point 0.4 meter above the top of a 0.5 meter high window. Find the time taken by the stone to pass the span of window. A stone is dropped from a point 0.4 meter above top of 0.5 meter high window. ये समझ में आया क्या बोला मैंने? स्टोन को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट 0.4 मीटर अबाउ द टॉप ऑफ 0.5 मीटर हाई विंडो। यानी सोचो कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है स्टूडेंट्स,
ये बिल्डिंग की ये विंडो है, आई गेटिंग इट, और ये जो विंडो है उसकी हाइट दी है 0.5 मीटर, है ना, और स्टोन जो ड्रॉप हुआ है 0.4 मीटर अबव द टॉप ऑफ अ 0.5 मीटर हाई विंडो, ये 0.5 मीटर वहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो अगर सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम बाहर की तरफ देख रहे हो, तो क्या स्पैन ऑफ टाइम में इट इज पासिंग थ्रू योर लाइन ऑफ साइट, क्योंकि बॉल ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना, टोटल हाइट का ड्रॉप कितना है 0.9 मीटर। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन, फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू पास द स्पैन ऑफ विंडो, यानी कितने टाइम में वो यहां से यहां तक आता है। इसको मैं पॉइंट ए लेता हूं, इसको मैं पॉइंट बी लेता हूं, इसको मैं पॉइंट सी लेता हूं। हाइट बी सी, अगर मैं पॉइंट सॉरी ये हाइट लेता हूं तो ये 0.5 है, सॉरी ये 0.4 है, टोटल इज 0.9। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? एनीबॉडी? अच्छा हाँ अभी क्लियर हुआ। तो तुम कैसे करोगे? तुरंत तुम्हारा आंसर आना चाहिए, सर क्या मैं ये टोटल टाइम निकाल दूं? आई गेट इट? And the time taken for it to move from where to where? Find the time taken by the stone to pass the span of window. Any time taken for this to pass the span of window. ये टाइम पूछा है स्टूडेंट तुम्हें, तो ये टोटल टाइम में से ये पार्ट टाइम में निकाल सकता हूँ। यानी स्टूडेंट्स आई विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम, डांस सुनना, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम टेकन फॉर व्हाट जर्नी, फॉर अ जर्नी ऑफ 0.9 मीटर। सेकेंड केस में स्टूडेंट्स फाइंड आउट द टाइम फॉर द जर्नी फॉर 0.4 मीटर। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? S is equal to UT plus, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट पहले किसमें कितना होगा 0.9, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ इनटू एक्सेलरेशन क्या लोगे 9.8। कैन आई फाइंड आउट द टोटल टाइम फॉर इट टू रीच, ये 4.9। so can I say t square will be equal to what, 0.9 upon 4.9 and then 9 upon 49, so what is t, 3/7 seconds. Agreed? Can you find out the time taken for the distance covered 0.4 meter? Yes, same formula. X की जगह पे क्या लोगे? Initial velocity 0 होगा, half into 9.8 into t square, ये 4.9 हो जाएगा students. So now can I say t square will be equal to how much, 4/49? So can I say 2/7? Is that clear? They are asking you to find out 3/7 minus 2/7. Students, time taken for 3/7 and 2/7. So 3/7 minus 2/7. What's the answer? Students, what is the answer of 1/7? 0.14. 0.14 second. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 20 सेकेंड। हाँ सर। Students, क्या is this clear to all of you, all the students who are into the group students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Okay, students. So students, today we have done for vertical motion. Okay, last time we have done for horizontal motion. बाकी ये जो 2 या 3 questions है students, 18, 19, 20, 21, whatever 3 or 4 students try to work it out. They are easy questions. Again, I wanted to solve it for homework. Next lecture students हम लोग solve करेंगे projectile के ऊपर जाएंगे, ground to ground projection, okay, and top to ground projection. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Mainly revise the formula and be consistent with it. Okay. Next lecture will be continuing further.
Okay, students? Bye. Chalo, bye. Take care. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Most welcome.